محمد ہمارے. مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں. 1400 ساڑھے 1400 پونے 1500 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر ہر گھر پر اور ہر فرد پر محنت کی ہے. ارے کیے نہیں کی تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے، این سنت کے مطابق ہے. یہ محنت سنت طریقے سے اب ہماری سمجھ میں جیسے آئے ویسی بات کرنا پڑتی ہے. یہ محنت بھائی اللہ کے نبی کے طریقے سے 1 انچ بھی ہٹی ہوئی نہیں، بلکہ 1 سوت بھی ہٹی بھی نہیں. من و عن وہی محنت ہے. اللہ ہمیں اس مبارک محنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایسی محنت ہے اگر اس وقت میں دیکھو، اس وقت میں آج سے 2 سال پہلے جو نظام الدین کی جماعت سفر کر کے گئی تھی اور بھائی ہر ضلع کا عمومی اجتماع ہوا تھا، اس وقت ان کا یہ تاثر تھا. اور روزانہ بھائی دیکھو حضرت کو وہ بتلاتے تھے کہ یہاں تو یہاں کا اجتماع بھی بھوپال سے بڑا ہے. گویا پورے صوبے کے اندر کوئی ضلع ایسا نہیں بچا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہو کہ بھئی یہ اجتماع تو بھوپال سے بھی بڑا ہے. اب بھوپال کا اجتماع ارے کتنے عرصے سے ہو رہا ہے. خیر باتیں تو محترم بزرگوں باتیں ہی ہیں. اب ہمیں اس وقت میں دیکھو ماہانہ جوڑ کے ذریعے سے جماعتیں بنانا ہے. ماہانہ جوڑ کے ذریعے سے بہت آسانی سے بن جائیں. لیکن محترم بزرگوں جتنے بھی ماہانہ 10 دن دینے والے ساتھی ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ نے انہیں سہولت دے رکھی ہے، استعداد ہے ان کے اندر، ماہانہ 10 دن دے سکتے ہیں. محترم بزرگوں کہنا پڑتا ہے، یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. بھائی ہماری چھوٹی مسجد ہے. کیسی مسجد ہے؟ اس لیے چھوٹی ہے کہ بھائی روڈ وائڈنگ کے اندر 80% مسجد چلی گئی، 20% بچی ہے. تو چھوٹی نہیں تو کیا بڑی کہیں گے اسے؟ اس میں 3 چھوٹی جماعتیں ہیں، لیکن 4 ساتھی ماہانہ جوڑ کے اندر ماہانہ 10 دن دے رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو سہولت دے رکھی ہے. ارے بھائی ماہانہ 10 دن تو وہی دیں گے نا جن کو سہولت ہے. ہر ایک تھوڑی دے گا، ہر ایک سے مطالبہ نہیں ہے. ہر مسجد جب چھوٹی مسجد میں 4 ساتھی ماہانہ 10 دن دینے والے ہو سکتے ہیں تو بھائی یہ تو انسانوں کا سمندر ہے اور بڑی بڑی آبادیاں ہیں. ایک مسجد میں جائزہ لیا میں نے تو 8 ساتھی نکلے، اور ابھی سفر کے اندر ایک ساتھی ساتھ میں ہیں. ان کا فرمانا ہے کہ ہماری مسجد کے اندر ماہانہ 10 دن دینے والے 15 ساتھی ہیں. کتنے ساتھی ہیں؟ ہمیں تو صرف ہر مسجد سے 1 ساتھی ماہانہ جوڑ کے لیے محترم بزرگوں وصول کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی وصول کرنا ہے. کوئی 3 دن کا ارادہ کر لے تو وصول کرنا پڑتا ہے، نہیں کرنا پڑتا. جتنے کا ارادہ کرے، 4 مہینے کا ارادہ کرے، وصولی کے بغیر تو بھائی جماعت بنتی ہی نہیں. میرے محترم بزرگوں ہماری درخواست ہے، ہر مسجد کا ذمہ دار اگر اللہ نے اسے توفیق دے رکھی ہے تو بھائی وہ خود ہی اپنی ذات کو وصول کر کے اور بھائی محترم بزرگوں ماہانہ جوڑ کے اندر شریک ہو جائے. اب یہ مہینہ ہے، 30واں مہینہ ہے. ترتیب یہ ہے کہ بھائی ایک تاریخ کو بھائی دیکھو ہر زون کے ایک سینٹر پر محنت ہوتی ہے. 12 کی 12 مسجدوں پر روزانہ رات کو بھی دن کو بھی
24 घंटे मस्जिदें आबाद रहती, 24 घंटे। तो उसके लिए हाँ भाई, हर मस्जिद से कम एक साथी, अब हर मस्जिद से सिर्फ एक साथी, अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़ी सी फिक्र की जरूरत है, थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है, करेंगे कोशिश। भाई जिम्मेदार हजरात फिक्र कर लें, कोशिश कर लें। देखो कोशिश करने वाला पालिया करता है, कोशिश करने वाला पालिया करता है। तो भाई कर लेंगे कोशिश, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई देखो हर जोन के एक सेंटर के अंदर, हाँ भाई, 1 तारीख से पहले जो रात आती है, हाँ भाई देखो, जैसे अपने यहाँ इस्लाम में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। इसलिए मुहतरम बुजुर्गों, रात के आमाल दिन निकलने से पहले अल्लाह के पास पहुँचते हैं, और दिन के अमाल रात आने से पहले अल्लाह के पास पहुँचते हैं। और रोजाना 2 मरतबा अल्लाह ताला ईमान वाले के अमाल के मुताबिक फैसले करते हैं। ले जाने वाले भी फरिश्ते अमाल को, और अल्लाह के फैसले लाने वाले भी फरिश्ते। मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सब जानते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये 84 मस्जिद का एक जोन होता है। कितना? अब भाई 7 सेंटर का एक जोन है, हर सेंटर में 12 मस्जिदें, तो 12 सत्ते 84। तो हर मस्जिद से एक साथी, थोड़ी सी फिक्र और थोड़ी सी कोशिश, बस। तो भाई मोहतरम बुजुर्गों, ये जमा होंगे। मोहतरम बुजुर्गों, ये जो एक तारीख आ रही है, भाई देखो, उसको इशा की नमाज से पहले उस मस्जिद के अंदर जमा होंगे जहां 1 तारीख को माहाना जोड़ होगा, सेंटर का 1 तारीख को जोड़ होगा। इशा की नमाज से पहले जमा हो जाएं। इशा की नमाज पढ़ना है, नमाज तो पढ़ना ही है, और नमाज के बाद इन 84 साथियों की 12 जमातें बनाना है। कितनी जमातें? 12 सत्ते 84, 7 की 12 जमातें बन जाएंगी। मुहतरम बुजुर्गों, ये साथी सफ़े अव्वल से भी बड़ी कुर्बानी देने वाले साथी हैं। माहाना 10 दिन और सालाना चिल्ला साल के 5 महीने होते हैं। बहरहाल मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अब इन जमातों को एक एक मस्जिद के अंदर मुंतकिल करना है। हर मस्जिद के अंदर एक जमात पहुंचे, और पहुंचने के बाद में उस मस्जिद के अंदर जितनी छोटी जमातें हैं उनसे मुलाकात करे, और उनसे दरख्वास्त करेगी कि भाई आज रात को अपनी इस मस्जिद के अंदर अल्लाह को राज़ी करने की मेहनत करना है। आप हजरात, हाँ भाई देखो, घर में आराम करने के बजाय हमारे साथ आज रात मस्जिद में आ जाओ और मस्जिद में आराम कर लो, मस्जिद में आराम कर लो। अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह ताला भाई देखो तैयार हो जाएंगे। औसतन हर मस्जिद के अंदर, किसी मस्जिद में भाई छोटी जमातें कम हैं, किसी मस्जिद में ज़्यादा हैं, लिहाजा औसतन तादाद आई है कम से कम हर मस्जिद के अंदर 5 जमातें। कितनी जमातें? 5 जमातें। तो अब ये 7 जिम्मेदार तो ये हैं, और हर मस्जिद का एक जिम्मेदार, 5 गो हो गए। 7 5 12 हो गए, 7 5 12 हो गए। इन 12 के साथ अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हर मस्जिद के अंदर 12 जमातें बनाना, 3 की, हर जिम्मेदार के साथ 2 साथी हाँ भाई लगाए जाए। समझ में बात आ रही है ना मेरे मोहतरम बुजुर्गों? और भाई 1 घंटा हर जमात अल्लाह को राजी करने की मेहनत करेगी, 4 अमाल के साथ। कितने अमाल के साथ? 4 अमाल के साथ।
इस तरह पर कि भाई 10 बजे से सुबह सादिक तक ये 12 जमातें एक एक घंटा अल्लाह को राजी करने की 4 आमाल के साथ मेहनत करेंगी। पहली जमात 10 बजे से 11 बजे तक, दूसरी जमात 10:30 से 11:30 तक, तीसरी जमात 11 से 12 तक और चौथी जमात 11:30 से 12:30 तक। इस तरह सुबह सादिक तक हर जमात के हिस्से में 1 घंटा आ जाए। और माशाल्लाह एक वक्त भी ऐसा, कोई वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मस्जिद जमात की मेहनत से खाली रहे। हाँ, ऐसा वक्त तो जरूर रहेगा कि 2 जमातें एक वक्त में मेहनत कर रही हों, यानी रात भर अल्लाह को राजी करने की मेहनत होगी। अल्लाह को राजी करना है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। भाई उन 4 आमाल में सबसे पहला अमल है वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र ही बड़ा है, अल्लाह का जिक्र ही बड़ा है। जैसे अल्लाह बड़े हैं भाई अल्लाह का जिक्र भी इसी तरह बड़ा है। जैसे अल्लाह की बड़ाई की कोई इंतहा नहीं, वराउल वरा है, इतने बड़े हैं कि हम अल्लाह को देख भी नहीं सकते, हम अल्लाह को सोच भी नहीं सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, 12 तीसरा कलमा हर जमात 15 मिनट मानी के ध्यान के साथ मोहतरम बुजुर्गों पढ़ना है उसे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। हदीस पाक में कि 4 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब हैं। भाई मोहतरम बुजुर्गों, किसी को उसकी महबूब तरीन चीज अगर हदिया में पेश की जाएगी तो उसका दिल कितना खुश होगा। जब मानी के ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो भाई मानी के ध्यान का मतलब तो ये है कि बच्चों को भी सुभान अल्लाह के माने याद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के माने याद हैं, तो क्या हमें याद नहीं रहेंगे? मानी के ध्यान के साथ एक 15 मिनट जी लगा करके भाई अल्लाह का जिक्र करना है। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद में 15 मिनट कुरान पाक की तिलावत करना है। आदाब की रियायत के साथ हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल कुरान में सबसे पहला भाई फ़ज़ाइल कुरान को उल्टेंगे पहला वर्क तो भाई पहले सफ़े के ऊपर अब जो है तिलावत के आदाब लिखे हुए हैं। 6 आदाब ज़ाहिरी और 6 आदाब बातिनी। भाई एक निगाह डाल दें, जितने आदाब के साथ तिलावत कर सकते हैं उतने आदाब के साथ तिलावत करना है। देखो बुजुर्गों, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, उसमें अल्लाह का नूर है, उसमें अल्लाह का नूर है, उसमें अल्लाह का नूर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर में है कि कुरान पाक के हर हर्फ के अंदर सूरज से ज्यादा नूर है। अरे भाई सूरज का नूर, सूरज की रोशनी तो मखलूक है और फानी है। जैसे सूरज भी फानी है ऐसे वो जो रोशनी भी फानी है, लेकिन ये तो अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है। जब आदाब के साथ मोहतरम बुजुर्गों 15 मिनट तिलावत करना है। कितने मिनट? हाँ, इतनी आवाज से तिलावत भी करना है, जिक्र भी करना है कि भाई अपनी आवाज अपने कान ही सुने, क्योंकि दूसरी जमातें मेहनत करके 1 घंटा आराम करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहरहाल 15 मिनट जो है ना आदाब की रियायत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाएगी तो भाई अल्लाह का नूर हमारे दिल के अंदर कितना आएगा, हमारा दिल रोशन होगा। एक तरफ अल्लाह राजी होंगे, दूसरे हमें हिदायत देंगे। अल्लाह का नूर दिल में आएगा तो वो चीजें उस नूर से नजर आती हैं जो इन आंखों से नजर नहीं आ सकती। अल्लाह नजर आएगा। कौन नजर आएगा? अल्लाह नजर आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इतनी जबरदस्त मेहनत है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है
जितने भी अकाबिरीन बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, हर एक के मामूलात पर मैंने अमल किया है और देखा है, लेकिन मुझे सिर्फ एक अमल के जरिए से अल्लाह का ताल्लुक सबसे ज्यादा मिला है, हासिल हुआ है, और वो है रात की तन्हाई में कुरान पाक की तिलावत देख कर करना। तो भाई देख कर तिलावत करना है, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो भाई हमें नहीं होगा क्या अल्लाह का ताल्लुक सबसे ज्यादा? अरे भाई हमें नसीब नहीं होगा क्या? ये मेहनत है, रात की मेहनत है। फिर इन मेहनतों के जरिए से जितना अल्लाह से ताल्लुक बढ़ा है, जितना हमारा दिल मुनव्वर हुआ है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसके साथ 2 रकात 4 रकात 15 मिनट में नमाज पढ़ना है। तीसरा अमल 15 मिनट में नमाज पढ़ना है। नमाज बजाते खुद नूर है, हदीस पाक में आता है नमाज नूर है। जो शख्स अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के जरिए से बना ले। ये मुहतरम बुजुर्गों मेहनतें हैं, इन मेहनतों को जब आदाब के साथ और भाई मानी के ध्यान के साथ और खुशू और खुजू के साथ, यकसूई के साथ जब हम मुहतरम बुजुर्गों इन अमाल को करेंगे, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, हमारा दिल अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नबी के कलाम से कितना मुतासिर होगा। और दिल के मुतासिर होने की अलामत यह है कि आंखों से आंसू जारी होते हैं। दिल असर लेता है ना तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हाथ उठा करके 15 मिनट चौथा अमल है अल्लाह से दुआ करना है। मुहतरम बुजुर्गों, अब सुबह सादिक होते ही भाई जो मेहनतें कर रही हैं उनकी मेहनत भी जमातों की पूरी हो गई। जो कर चुकी हैं भाई वो भी जो है वो अपने आराम से उठ जाएंगी, और सारी की सारी जमातें भाई अपने बाकी के अगर कोई कुछ मामूलात हैं तो उनको भी पूरा कर लेंगी, और हल्का फुल्का अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लिया जाएगा। और भाई ये 12 की 12 जमातें हर मस्जिद के अंदर छोटी जमातों के साथ, छोटी जमातें भी हैं और भाई ये 12 जमातें भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह की तौफीक से भाई देखो ये मेहनत होगी तो और भी अल्लाह के बंदे, मस्जिदें भरी हुई हैं, औकात लगाए हुए और भी अल्लाह के बंदे रहेंगे। लिहाजा सारे के सारे हाँ भाई फजर की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर मस्जिद की तालीम होगी आधा घंटा। इसकी थोड़ी सी तफसील है इस वक्त में मेरे मुहतरम बुजुर्गों। तफसील ये है कि मस्जिद की तालीम का वक्त असल जो है वो 1.5 घंटा है। कितना है? क्योंकि एक सूबे के सबसे बड़े जिम्मेदार ने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था, हजरत मस्जिद की तालीम कितनी देर करें? तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि 1.5 घंटा। वो ये समझे कि हजरत मेरी बात समझे नहीं, लिहाजा उन्होंने फिर दोबारा अर्ज किया कि हजरत मैं वो तालीम नहीं पूछ रहा जो अल्लाह के रास्ते में निकल करके जमातें करती हैं, मैं मस्जिद की तालीम के बारे में पूछ रहा हूँ। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हाँ मैं भी मस्जिद की तालीम के बारे में ही कह रहा हूँ, 1.5 घंटा होनी चाहिए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, उनके बाद में फिर उनके मकाम पर उसी मकाम के हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि भाई उम्मत के अंदर अभी 1.5 घंटा तालीम की इस्तेदाद नहीं है। हाँ, आंखों वालों को नजर आता है हाँ भाई इस्तेदाद नहीं है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग, हालांकि मेहनत ही इस्तेदादी है, रोजाना की जाएगी तो ऐसी इस्तेदाद पैदा होगी कि हम खुद हैरत में रह जाएंगे, बहरहाल हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई आधा घंटे तालीम होना चाहिए। कितनी देर? आधा घंटे। लेकिन धीरे धीरे हाँ भाई देखो तालीम को बढ़ाया जाए। अगर 1 महीने में 1 मिनट भी बढ़ाया जाएगा तो साल भर में, 2 साल में, 3 साल में पहुंचेगी वहीं पर गाड़ी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों,
भाई देखो तालीम होगी और सारे के सारे साथी शरीक होंगे, आदाब की रियायत के साथ जितना हो सके। हाँ भाई देखो, अल्लाह के वादों के यकीन के साथ, अल्लाह की वईदों के यकीन के साथ, अल्लाह की खबरों के यकीन के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ मेरे महतरम और जो है यकीन, मेरे महतरम बुजुर्गों, इस तरीके से तालीम होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ईमानियात की तालीम है। भाई ईमानियात में कितना इजाफा होगा, ये है मेहनत, ये है मेहनत मेरे महतरम बुजुर्गों। उसके बाद में ये 12 जमातें जो है ना हर मस्जिद में, भाई इनके ऊपर मस्जिद के माहौल में जितने घर हैं बराबर बराबर तकसीम किए जाएंगे। जैसे छोटी जमातों के ऊपर अब भाई मस्जिद के घर तकसीम है, हमारे यहाँ एक निज़ाम है। लेकिन माहाना जोड़ में जिस दिन जोड़ है सेंटर का, उस दिन हर मस्जिद के माहौल में जितने घर हैं, हर मस्जिद में 12 जमातें हैं। रात को मेहनत हुई है हर मस्जिद के अंदर। अब 12 जमातों को भाई देखो तकसीम करेंगे घर, तो औसतन इसी तरीके से जैसे जमातों को सोचा है कि भाई हर मस्जिद के अंदर 5 जमातें हैं, ऐसे ही किसी घर में ज़्यादा, किसी मस्जिद के माहौल में ज़्यादा घर हैं, किसी मस्जिद के माहौल में भाई कम घर हैं, लेकिन औसतन 150 पकड़ रखें। कितने? तो भाई 150 घरों को तकसीम करेंगे, 150 घरों को तकसीम करेंगे तो 12 ढाई 120, 12 ढाई 10 घर तकसीम करेंगे तो 120 घर तकसीम हो गए, 30 घर बच गए। 2 घर और तकसीम कर दो तो 6 घर बच गए, 12 दूनी 24 तकसीम हो गए, 30 में से 6 घर बच गए। 6 जमातों के हिस्से में 13 घर आएंगे, 6 जमातों के हिस्से में 12 घर आएंगे। कोई घर बचेगा? भाई कोई घर नहीं बचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेहनत शुरू होगी मस्जिद की आबादी की। घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटा मेहनत होगी। और मेरे मुहतरम बुजुर्गों, उसी तरीके पर मकामी साथी साथ में हैं, वो रहबरी करेंगे। मस्जिद में ईमान का हल्का कायम करके 12 की 12 मस्जिदों के एतबार से, हाँ भाई देखो 3 साथी मुलाकात के लिए जाएंगे, 3 साथी, और भाई जाकर के अपने भाई को आवाज देंगे। घर में मौजूद हैं हमारे भाई, घर से बाहर तशरीफ लाएंगे। लिहाजा देखो, ईमान वाले को जब हमारी नजर पड़े उसके ऊपर, जैसे ही हमारा भाई घर से बाहर निकले और हमारी नजर उसके ऊपर पड़े, तो इज्जत की निगाह से देखना है। कौन सी निगाह से देखना है? क्योंकि ईमान वाला, सारे ईमान वाले अल्लाह की तरफ से इज्जत दिए गए हैं। कुरान पाक में है, वलिल्लाहिल इज्जतो, इज्जत अल्लाह ही के लिए हैं, वले रसूल ही, और इज्जत रसूलों ही के लिए हैं, वलिल मुमिनीन, इज्जत ईमान वालों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो महतरम बुजुर्गों, ईमान की वजह से अल्लाह पाक की तरफ से ईमान वाला इज्जत वाला है। और इज्जत की निगाह से देखेंगे ना, तो देखो निगाह जो है वो हक है। निगाह क्या है? माँ बाप की निगाह बच्चों को लग जाती है। हाँ, निगाह हक है मेरे मुहतरम बुजुर्गों। लिहाजा मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, इज्जत की निगाह से देखेंगे, तो उनके दिल में हमारी, हमारे दिल में उनकी, अल्लाह इज्जत में इजाफा करेंगे। मोहब्बत की निगाह से देखना है। कुरान पाक में है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, हदीस पाक में है मेरे मुहतरम बुजुर्गों। तो मोहब्बत की निगाह से देखना है। भाई देखो, भाई भाई जो हैं, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, भाइयों में हकीकी मोहब्बत होती है। भाइयों में कैसी मोहब्बत होती है? हकीकी मोहब्बत होती है। मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, तरफेन में मोहब्बत जो है वो बढ़ेगी। सलाम करेंगे तो सलाम से भी मोहब्बत बढ़ती है, सलाम से भी मोहब्बत बढ़ती है। उसके बाद में मुसाफा करेंगे। हाथ जुदा होने से पहले भाई दोनों के दिल में अगर कोई जरा सी भी कजी है, वो सब साफ हो जाए। फिर खैर ख्वाही के जज्बे से हर ईमान मुसलमान हर एक का खैर ख्वाह होता है, मुसलमान हर एक का खैर ख्वाह होता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, खैर ख्वाही के जज्बे से, जज्बा दिल के अंदर होता है, खैर ख्वाही के जज्बे से भाई हाल अहवाल पूछना है।
ذات کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، مشاغل کے اعتبار سے. اب بھائی خیرخواہی کے جذبے سے پوچھا ہے تو بھائی جو بھی حال سامنے آئے گا، ہاں بھائی دیکھو اس جذبے کے تحت اللہ جو ہے جتنی توفیق دے، ہاں بھائی اپنے بھائی کا تعاون کرنا ہے. بھائی جان تو ہر ایک کے پاس ہے، جان تو ہر ایک کے پاس ہے. بھائی جان لگانا ہے، مطلب یہ کہ کوئی مسئلہ ہے تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں، مشورہ ہی دے سکتے ہیں. اللہ توفیق دے مال بھی لگائیں. بھائی مسلمانوں کی ضرورتوں کے اندر جان لگے گی تو جان لگانے والوں کی جانوں میں اللہ برکت دیں گے، اور جن پر جان لگے گی ان کے دلوں میں محبت ڈالیں گے، ان کے دلوں میں محبت ڈالیں گے. میرے محترم بزرگوں، مال لگے گا تو مالوں میں برکت دیں گے، اور بھائی محترم بزرگوں جن پر لگے گا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالیں گے. اندازہ کیجئے ابھی کچھ عرصے پہلے حاجی لائق صاحب نے ایک واقعہ سنایا.